Hello students, so today I am discussing some chemical properties of alkene. What are alkenes? Those hydrocarbon in which there is a presence of carbon-carbon double bond are known as alkene. So alkenes are represented as carbon double bond carbon and valency free. The general formula of alkene is CnH2n. And alkenes are also known as olefins because on the reaction of bromine it gives brominated product, and that dibromo product are oily in nature. That's why these alkenes are known as olefins. And the general formula is CnH2n, and some members C2H4 ethylene, C3H6 propylene, C4H8 butylene, or IUPAC name is ethene, propene, butene. You already know about these things. So here I am discussing some chemical property. So first of all, we know that alkenes are more reactive than alkane. In the case of alkane, you have only read few reactions of alkane. Chlorination means halogenation of alkane, bromination, and nitration, sulfonation, aromatization, isomerization, cracking. But in the case of alkene, there are a number of reactions. Here you can see that reaction with hydrogen, reaction with HCl, reaction with HBr, reaction with H2SO4, reaction with water, reaction with hypochlorous acid, ozonolysis, alkaline KMNO4. So there are a number of reactions. It means alkenes are more reactive than alkene. Why alkenes are more reactive than alkane? Because in the case of alkene, the pi electrons of the double bonds are located far from this carbon atom. But in the case of alkane, there is a carbon-carbon single bond, and this bonded pair is very near to carbon atom. So, क्या होता है in that case? These electrons are loosely bounded with this carbon nuclei. That's why these are easily available for the reaction, and alkenes are more reactive than alkene. First point. Second point, the pi formation of pi is by pp orbital overlapping, side by side overlapping of 2p orbital, and this is not so effective. But in the case of this sigma bond, this is very effective. That's why this is also loose and it can easily react. So it means carbon carbon pi bond is weaker. Pi bond is weaker as compared to this sigma bond, and pi bond is present in alkene. That's why alkenes are more reactive than alkane. Next, some reaction, because these alkenes contain carbon carbon double bond, so mostly they gives addition reaction. So addition reaction, एडिशन हम जानते हैं क्या होता है, ए प्लस बी कंबाइन होकर ए बी बना देता है. सो दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ एल्कीन, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड. हियर वन इज सिग्मा बॉन्ड एंड अनदर वन इज pi bond. when it react with any reagent which is made up by इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल से मिलकर बना होगा. so one portion added at this carbon atom and second one added at this carbon atom, so this compound will be formed. So after addition reaction, here you can see that 1 2 3 4 5, there are 5 sigma bond and 1 pi bond, but in the product there are 1 2 3 4 5 6 7 sigma bond. So on addition reaction, one sigma bond disappeared and two new one pi bond disappeared and two new sigma bond is formed. Okay, now the mechanism, this is a general mechanism of this addition reaction. This is applicable for if you will add nitrosyl chloride, if you will add hypochlorous acid, if you will add bromination in the case of HBr. So this is a general mechanism of एडिशन रिएक्शन. तो स्टेप नंबर 1 इज, जो रिएजेंट होता है वो आइनाइज हो जाता है. ठीक है, तो द रिएजेंट इज दिस वन इज रिएक्टेंट, दिस वन इज रिएजेंट एंड दिस वन इज प्रोडक्ट. तो जो रिएजेंट है जो भी होगा, यदि Br2 होगा तो Br पॉजिटिव Br नेगेटिव. जैसे देखो क्या होगा, E या Nu है तो किस में कन्वर्ट हो गया, E पॉजिटिव प्लस Nu नेगेटिव. सो इन स्टेप नंबर 1, reagent ionize and gives a positive ion, that is known as electrophile, as well as a negative ion, that is known as nucleophile. So in first step there is a dissociation and ionization of the reagent and formation of a positive ion as well as a negative ion, means formation of a electrophile which contain a positive charge and a formation of nucleophile. In step number 2, attack of this electrophile on carbon carbon double bond. Why electrophile attacks on carbon carbon double bond? Because here you can see that there are two bonds between these two carbon atoms. So bond is made up by electrons, so it means here there is a high electron density. So if nucleophile attacks here, then
these electron repel this nucleophile, but these electrons, due to the negative charge on electron, these electrons attract this nucleophile towards itself. So क्या होगा, पहले वैसे क्या होता है आपका, पहले उसके क्लोज जाता है, क्लोज जाके पाई कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन होता है, एंड फाइनली क्या होता है, देयर इज अ डिसोसिएशन ऑफ दिस कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड. जो पाई बॉन्ड है हम पहले बता चुके हैं कि पाई बॉन्ड क्या होता है, वीकर बॉन्ड है, तो वो क्या हो जाता है, इजीली ब्रेक हो जाता है, एंड द बाई द ये क्लीवेज ऑफ दिस पाई बॉन्ड क्या होता है आपका, इलेक्ट्रोफाइल अटैक करता है. कैसे भी दिखा दो, ऐसे दिखा दो चाहे ऐसे दिखा दो, अभी दोनों सेम है, तो फिलहाल ऐसे ही दिखाया गया है. तो यहाँ नेगेटिव हो जाएगा, ई पॉजिटिव अटैक करेगा तो ई अटैक कर लेगा, एंड क्या फॉर्मेशन हो गया फिर आपका, कार्बोनियम आइन जनरेट हो गया. ठीक है. तो स्टेप नंबर 2, जो इलेक्ट्रोफाइल है वो क्या करता है, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड पर अटैक करता है, एंड फॉर्मेशन ऑफ दिस इलेक्ट्रोफाइल. एंड इन स्टेप नंबर 3 क्या होता है, न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है. कहाँ पर अटैक करता है, दिस न्यूक्लियोफाइल अटैक्स एट दिस कार्बोनियम आइन एंड फॉर्म अ कार्बन न्यूक्लियोफाइल बॉन्ड. फाइनली ये बन जाता है. ठीक है. तो दिस टाइप ऑफ एडिशन इज नोन एज इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन. कौन सा कहलाता है आपका, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन, बिकॉज द एडिशन रिएक्शन इज इनिशिएटेड बाय दिस इलेक्ट्रोफाइल, नॉट बाय दिस न्यूक्लियोफाइल. ठीक है. क्योंकि पहला अटैक देखो बना दोनों था, इलेक्ट्रोफाइल भी बना था, न्यूक्लियोफाइल भी बना था, बट अटैक किसने किया, इलेक्ट्रोफाइल ने अटैक किया. दैट्स वाई दिस इज नोन एज इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन. Now some example of addition reaction. First one is addition of hydrogen. What is addition of hydrogen? When alkene react with hydrogen in the presence of Raney-Nickell catalyst or nickel catalyst, it gives 2 hydrogen atoms added at these 2 carbon atom, and it gives alkanes. So addition of hydrogen, it gives alkane. Alkenes are converted into alkane by the addition of hydrogen atom. But the mechanism of this reaction is not occur through the mechanism previously I have discussed. The mechanism is entirely different from the normal electrophilic addition reaction. तो होता क्या है इसमें देखो, this is a catalyst, which one, जो गोल गोल दिखा रखा है ये है catalyst, means nickel. When we added hydrogen, तो ये क्या करता है आपका, it absorb hydrogen on the surface of catalyst. ठीक है. तो ये क्या करता है आपका, हाइड्रोजन को एब्जॉर्ब करता है. फिर उसके बाद क्या होता है, जो एल्कीन्स हैं, जो ये एल्कीन्स हैं ये भी क्या करते हैं आपके इसके सरफेस पे एब्जॉर्ब होते हैं. एंड फाइनली क्या हो रहा है देखो, ये दोनों क्लोज आ गए हैं, ये आपके पहले दूर था, ये हाइड्रोजन और जो एल्कीन है जो एक दूसरे के क्लोज होंगे, वो क्या करता है अपने हाइड्रोजन इसको ट्रांसफ़र कर देता है. तो एक हाइड्रोजन इस कार्बन को जो कि क्लोजेस्ट प्रॉक्सिमिटी में होंगे उस एल्कीन को वो हाइड्रोजन ट्रांसफ़र कर देगा, ये हाइड्रोजन इसको कर देगा, ये हाइड्रोजन इसको कर देगा, एंड फाइनली क्या हो जाएगा आपका, ये यहाँ से सरफेस से निकल जाएंगे और क्या बन जाते हैं आपके, एल्कीन्स बन जाते हैं. तो दिस इज़ नोन एज हेट्रोजिनस कैटालिटिकल रिएक्शन. ठीक है. जिसमें क्या होगा आपका, ये निकल कैटलिस्ट है, तो होता कुछ नहीं है, जब निकल कैटलिस्ट एल्कीन और हाइड्रोजन को एक साथ रखा जाता है तो जो कैटलिस्ट है उसके सरफेस पे कौन आ जाते हैं, एब्जॉर्ब हो जाता है हाइड्रोजन अलोंग विथ एल्कीन. ठीक है. और जो एल्कीन और जो हाइड्रोजन है जो क्लोज प्रॉक्सिमिटी में आते हैं वो क्या करते हैं अपने, ये बॉन्ड वीक होकर ये यहाँ से क्या करता है, इस बॉन्ड को क्लीव करता है और हाइड्रोजन क्या हो जाती है, ऐड हो जाती है. तो ये मैकेनिज्म जो हमने 3 स्टेप में पढ़ी थी कि डिसोसिएशन ऑफ या आयनाइजेशन ऑफ रिएजेंट देन अटैक ऑफ, उससे क्या है डिफरेंट है. एंड फाइनली क्या होता है, जब हाइड्रोजन ऐड हो जाती है तो ये मॉलिक्यूल फ्री हो जाता है सरफेस से और ये रिमूव हो जाता है. जो एल्कीन्स हैं दे आर कन्वर्टेड इनटू एल्कीन्स. ठीक है. एंड दिस एडिशन इज नोन एज सिस एडिशन बिकॉज बोथ हाइड्रोजन अटैक्स फ्रॉम द सेम साइड. सेम साइड से आ रहा है, ऐसा नहीं हो रहा कि एक हाइड्रोजन यहाँ से आ रहा है दूसरा ऊपर से आ रहा है, ऐसा नहीं है. ये यदि नीचे से अटैक कर रहा है तो दूसरा हाइड्रोजन भी नीचे से आ रहा है, तो दोनों सेम साइड से एडिशन हो रहा है. तो दिस टाइप ऑफ एडिशन इज नोन एज सिस एडिशन. तो ये था आपका हाइड्रोजिनेशन ऑफ या एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इन एल्कीन. सेकेंड वन इज एडिशन ऑफ हेलोजन. Normal example is this is ethylene when it react with bromine in inert solvent. These 2 bromine atom added to these 2 carbon atom and it gives a dibromoethane. ठीक है. And its mechanism is similar which I previously discussed. So there is no need for the discussion of the mechanism of this reaction. यदि आता है एग्जाम में तो क्या होगा आपका, पहले Br2 आइनाइज कर दो, Br2 आइनाइज होगा तो क्या बनेगा, Br पॉजिटिव बना दो, Br नेगेटिव बना दो, फिर अटैक किसका दिखाओगे, इलेक्ट्रोफाइल का. इट मीन्स Br पॉजिटिव. जहाँ पर को मैंने क्या लिखा है आपका, ये यहाँ पर Br पॉजिटिव आ जाएगा, कुछ नहीं है, यहाँ पर Br आ जाएगा, यहाँ Br नेगेटिव. मीन्स
यहाँ पर बी आर करके कर लेना, इसमें कोई डिफिकल्टी नहीं है, तो इसको देख लेना, नहीं आएगा तो फिर पूछ लेना। नेक्स्ट वन इज एडिशन ऑफ हेलोजन एसिड। व्हाट आर हेलोजन एसिड? HX, ठीक है। तो क्या होता है आपका, देखो दिस इज इथाइलिन CS2 डबल बॉन्ड CS2 HX, एडिशन होना है, एक कार्बन में क्या आ जाएगा आपका H आ जाएगा, एक कार्बन में क्या आ जाएगा ब्रोमीन आ जाएगा। सो व्हेन इथाइलिन रिएक्ट विद HBr इट गिव्स एथिल ब्रोमाइड, ठीक है। But in the case of propylene, because in the case of ethylene this is symmetrical type of, here this is symmetrical alkene. Which one is ethylene? This ethylene is symmetrical alkene, CS2 this is symmetrical alkene. So क्या होता है, हाइड्रोजन यहाँ अटैक करे, हाइड्रोजन यहाँ अटैक करे, या ब्रोमीन फर्स्ट कार्बन में करे, कोई फर्क नहीं पड़ता, दोनों में सेम ही प्रोडक्ट बनेगा। बट इन द केस ऑफ अनसिमेट्रिकल एल्कीन, ये देखो अनसिमेट्रिकल एल्कीन है, यदि ये एल्कीन है हम इसको दो पोर्शन में डिवाइड करेंगे तो ये क्या है आपका अलग अलग पोर्शन मिलेंगे। सो दिस इज अनसिमेट्रिकल एल्कीन। अब इसमें HBr एडिशन होगा तो दो पॉसिबिलिटीज़ हैं। फर्स्ट पॉसिबिलिटी क्या है, देखो यहाँ और यहाँ पर एडिशन होना है कार्बन नंबर 1 और कार्बन नंबर 2 में। H आपका यदि कार्बन नंबर 2 में ऐड होगा और Br आपका कार्बन नंबर 1 में ऐड होगा तो क्या हो जाएगा आपका CS3 CH2 CS2 Br। और दूसरा केस उल्टा हो सकता है कि H कहाँ पर ऐड हो, कार्बन नंबर 1 में, एंड Br कहाँ पर ऐड हो, कार्बन नंबर 2 में, तो क्या बनेगा आपका CS3 CH Br CS3। इट मीन्स दो प्रोडक्ट बनने की पॉसिबिलिटी है। नंबर 1 इज 1 ब्रोमोप्रोपेन एंड सेकेंड वन इज द सेकेंड प्रोडक्ट इज 2 ब्रोमोप्रोपेन, ठीक है। अब बनता क्या है, तो इसके लिए क्या है आपका, हम जानते हैं वेरी इंपॉर्टेंट मार्कोनी-कॉप्स रूल है। तो क्या कहता है आपका मार्कोनी-कॉप्स रूल, व्हेन अनसिमेट्रिकल रिएजेंट, सिमेट्रिकल रिएजेंट नहीं होना चाहिए। सिमेट्रिकल रिएजेंट इस क्या होते हैं, जैसे मैं कहती H2 का एडिशन करूँ तो H सिंगल बॉन्ड H, दिस वन इज सिमेट्रिकल रिएजेंट, इक्वली दो पोर्शन में डिवाइड हो रहा है। क्लोरीन का एडिशन करो Cl सिंगल बॉन्ड Cl, तो दिस वन इज ऑल्सो सिमेट्रिकल रिएजेंट, ठीक है। बट HBr इज वन पोर्शन इज H पॉजिटिव एंड सेकेंड वन इज Br नेगेटिव, सो HBr इज अनसिमेट्रिकल रिएजेंट, ठीक है। हाइपोक्लोरस एसिड HOCl कैसा रिएजेंट, HOCl, वन पोर्शन इज HO एंड सेकेंड वन इज Cl, सो इट मीन्स अनसिमेट्रिकल रिएजेंट, ठीक है। तो मार्कोनी-कॉफ रूल क्या कहता है आपका, when unsymmetrical reagent added to unsymmetrical alkene, here alkene is also unsymmetrical, तो क्या होता है आपका नेगेटिव पोर्शन ऑफ द reagent added to that carbon atom which contain lesser number of hydrogen। नेगेटिव वहाँ जाना है जहाँ पर हाइड्रोजन क्या है आपके कम है। फॉर एग्जाम्पल देखो हमें मालूम है HBr क्या होता है आपका H पॉजिटिव होता है और Br नेगेटिव होता है, तो मार्कोनी-कॉप्स रूल लगेगा तो क्या होगा आपका, हम कह रहे हैं कि अनसिमेट्रिकल रिएजेंट, वन अनसिमेट्रिकल रिएजेंट एडेड टू अनसिमेट्रिकल एल्कीन, देन नेगेटिव पोर्शन इट मीन्स Br नेगेटिव एडेड टू दैट कार्बन एटम विच कंटेन लेसर नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम। एडिशन हमारे मालूम है इन दोनों के बीच में होना है, इस कार्बन नंबर 1 एंड कार्बन नंबर 2। कार्बन नंबर 1 इज अटैच्ड विद 2 हाइड्रोजन एटम बट कार्बन नंबर 2 इज अटैच्ड विद ओनली 1 हाइड्रोजन एटम। तो नेगेटिव कहाँ होगा, जहाँ पर को क्या होंगे आपका लेसर हाइड्रोजन होंगे। तो इट मीन्स Br कहाँ पर अटैच होना चाहिए, कार्बन नंबर 2 से, एंड हाइड्रोजन कहाँ अटैच होना चाहिए, कार्बन नंबर 1 से। और यदि उल्टा भी लिखा रह सकता है कि पॉजिटिव कहाँ अटैच होना चाहिए, जहाँ पर ग्रेटर नंबर ऑफ हाइड्रोजन होना चाहिए, ठीक है। तो ये क्या है आपका मार्कोनी-कॉफ रूल बहुत आता है। अब सपोज मार्कोनी-कॉफ रूल आता है आपका एग्जाम में, तो आपने कैसे क्वेश्चन को अटेंड करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू राइट द मार्कोनी-कॉफ रूल, देन 2-3 एग्जाम्पल। फर्स्ट वन इज यही लिख दो, प्रोपाइलिन की HBr के साथ रिएक्शन कर लो। सेकेंड प्रोपाइलिन की हाइपोक्लोरस एसिड के साथ की रिएक्शन कर लो, HOCl के साथ रिएक्शन कर लो। इस तरीके से आपने 2-3 रिएक्शन देनी है। देन आपने क्या बताना है कि मेजर प्रोडक्ट क्या बनता है अकॉर्डिंग टू मार्कोनी-कॉफ रूल। नेगेटिव जो जाएगा तो इट मीन्स नेगेटिव Br को कहाँ पर अटैच होना है, कार्बन नंबर 2 में, तो दिस प्रोडक्ट शुड बी मेजर प्रोडक्ट, ठीक। अब वाई, तो उसके लिए आप फिर क्या एक्सप्लेन करने आपकी मैकेनिज्म फॉर मार्कोनी-कॉफ रूल, ठीक है। तो मैकेनिज्म क्या है, देखो वही मैकेनिज्म है जो अभी हमने पढ़ी थी। क्या होता है HBr आइनाइज, हमने यही पढ़ा था ना अभी एडिशन में, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन में, कि क्या होता है जो रिएजेंट होता है इट आइनाइज एंड इट गिव्स इलेक्ट्रोफाइल एज वेल एज अ न्यूक्लियोफाइल, ठीक है। तो इसमें भी क्या होगा आपका, ये आइनाइज होगा, HBr आइनाइज होगा, आइनाइज होकर क्या बनेगा H पॉजिटिव प्लस Br नेगेटिव, ठीक है। सेकेंड में क्या था आपका इलेक्ट्रोफाइल अटैक करता डबल बॉन्ड, इन द केस ऑफ दिस
reaction the electrophile is H positive and H positive is known as proton. So step number 2, the proton attacks the double bond. So here this is the starting material or reactant CS3 CS double bond CS2 plus H positive. H positive means electrophile which generate in step number 1 by the ionization of HBr. ठीक है. So there are two possibility. या तो बॉन्ड ये इस तरीके से क्लेव हो, इट मीन्स जिसमें एरो का हेड आता है वो इलेक्ट्रॉन को पुल कर रहा है, तो इट मीन्स इट कंटेन नेगेटिव चार्ज और ये इट बिकम्स पॉजिटिवली चार्ज. ठीक है, तो ये नेगेटिव ये पॉजिटिव, तो एच कहाँ अटैक होगा इस कंडीशन में, इस वाले पर अटैच होगा. तो क्या बनेगा आपका, एच यहाँ पर अटैच हो जाएगा तो ये वाला प्रोडक्ट बनेगा पाथ ए से. माना बॉन्ड क्लीव ऐसे हो रहा है इस डायरेक्शन में, तो ये बनेगा आपका एच पॉजिटिव यहाँ जुड़ेगा नेगेटिव सेंटर पे. तो क्या फॉर्मेशन हुआ देखो, CH3 CH पॉजिटिव CH3 बन गया. CH2 का क्या हो गया वो आपका CH3. सेकेंड पॉसिबिलिटी क्या है आपका, बॉन्ड क्लीव ऐसे हो जाए, बी मोड से क्लीव हो, तो क्या होगा इस कंडीशन में H कहाँ अटैच होगा, क्योंकि अब इसमें नेगेटिव है तो H यहाँ अटैच होगा. तो क्या बनेगा, B से होगा तो CH3 CH2 पॉजिटिव. हेयर यू कैन सी दैट दिस कार्बोनियम आइन इज 2 डिग्री कार्बोनियम आइन. कितना डिग्री है आपका, 2 डिग्री, because this carbon is attached with 2 carbon atom which contains a positive charge. This carbon is attached with 2 carbon atom, that's why this is 2 degree carbonium ion. And here you can see that this is 1 degree carbonium ion, and we know that 2 degree carbonium ions are more stable than 1 degree carbonium ion. So it means major product will be formed by this carbonium ion. तो हम यहीं से रिएक्शन को प्रोसीड करेंगे. एंड नंबर थर्ड वन इज ब्रोमाइन आइन अटैक्स टू कार्बोनियम आइन. तो अब कौन सा वाला लेंगे, ये वाला लेंगे. तो दिस इज कार्बोनियम आइन, 2 डिग्री कार्बोनियम आइन प्लस Br नेगेटिव इस यहाँ पर अटैक होगा, क्या बन जाएगा CH3 CH CH3 Br. तो इट मीन्स क्या होता है आपका 2 ब्रोमोप्रोपेन इज मेजर प्रोडक्ट. इससे बनेगा तो माइनर बनेगा. ओके, इससे मेजर क्यों, बिकॉज दिस कार्बोनियम आइन इज मोर स्टेबल. तो दिस इज द मैकेनिज्म ऑफ मार्कोनिकॉफ्स रूल. एंड फाइनली क्या होता है आपका, यदि क्या होता है आपका पेरोक्साइड इफेक्ट. यदि इसी तरीके का HBr CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 प्लस HBr इन द प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड करते हैं तो क्या होता है आपका, बनना क्या चाहिए था 2 ब्रोमो, अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकॉफ रूल क्या बनता है आपका 2 ब्रोमोप्रोपेन. लेकिन इसके केस में क्या बन रहा है आपका 1 ब्रोमोप्रोपेन एंड नॉर्मल प्रोपिल ब्रोमाइड बन रहा है एंड प्रोपेन बन रहा है. तो क्या बोलते हैं इसको, एंटी मार्कोनिकॉफ रूल या पेरोक्साइड इफेक्ट या खेरास इफेक्ट भी कहा जाता है. ठीक है, खेरास इफेक्ट, पेरोक्साइड इफेक्ट या एंटी मार्कोनिकॉफ रूल, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है. ये किसके लिए रूल होता है, एप्लीकेबल होता है HBr के लिए, ये मैं बाद में डिस्कस करूंगी. तो फिलहाल मार्कोनिकॉफ आता है तो आपने मार्कोनिकॉफ लिखना है, उसके 2-3 एग्जाम्पल लिखने हैं, उसके बाद उसकी मैकेनिज्म डिस्कस करनी है, और उसके बाद एक पॉइंट और भी बताना है कि यदि पेरोक्साइड प्रेजेंट होता है HBr की प्रेजेंस में तो जो एडिशन होता है वो मार्कोनिकॉफ का उल्टा हो जाता है, दैट इज नोन एज एंटी मार्कोनिकॉफ एडिशन. या बिकॉज यहाँ पर पेरोक्साइड प्रेजेंट है, पेरोक्साइड, सो दिस इज ऑल्सो नोन एज पेरोक्साइड इफेक्ट भी कहलाता है. एज वेल एज खेरेस नाम के एक साइंटिस्ट ने दिया था तो उनके नाम पे इसको खेरेस इफेक्ट भी कहते हैं.